رجانہ کے ماہر تعلیم سعید اختر صاحب ریٹائرمنٹ کے موقع پر تقریب منعقد کی گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے BRN نیوز سید سجاد حسین شاہ کی اس رپورٹ میں۔ نوجوان نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے والے ماہر تعلیم دان چودھری محمد سعید اختر کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول رجانہ میں پرنسپل محمد طارق کی زیر سرپرستی منعقد ہوئی۔ تقریب میں پرنسپل فقیر محمد، پرنسپل محمد ارشد بھٹا، ماہر تعلیم حاجی اکرام الحق، مرزا ضیاء الرحمان ایڈوکیٹ نے خصوصی شرکت کی، جبکہ چودھری محمد سعید اختر کی تعلیمی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں بھرپور خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ موصوف عرصہ دراز سے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول رجانہ میں اپنے تدریسی فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ان کا اپنے شاگردوں کے ساتھ انتہائی شفقت والا رویہ رہا۔ ان کی اسکول سے رخصتی کے وقت انہیں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ گھر کو رخصت کیا گیا۔ ان کے اسکول سے رخصتی کے دوران ان کے شاگردوں نے انہیں جذباتی انداز میں چومتے ہوئے اپنے گھر رخصت کیا، جبکہ اس موقع پر انہوں نے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ استاد کی عزت اور تکریم کرتے ہوئے تم تعلیمی کامیابیوں کی منازل آسانی سے طے کر سکتے ہو۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اپنی تمام تر توجہ مرکوز کر کے خود کو ایک اچھا انسان اور محب وطن پاکستانی بنائے اور وطن عزیز کی خدمت کرے۔ کنڈری سے فدا حسین حیدری کہیری کی رپورٹ۔ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی تیز۔ فقیر عبداللہ انر ساڈھوری میں قائم بدنام زمانہ شراب کی بھٹی پر چھاپہ، 3 منشیات فروش گرفتار، بھاری مقدار میں کچی شراب برآمد۔ SSP عمرکوٹ عبدالخالق پیرزادہ کے سخت احکامات پر SHO کنڈری افتخار احمد باجوہ نے لیڈیز پولیس کے ہمراہ فقیر عبداللہ انر ساڈھوری میں بدنام زمانہ کچی شراب کی بھٹی پر چھاپہ مارتے ہوئے تارا چند مانسک سومجی کو بھاری مقدار میں کچی شراب کشید کرنے کے سامان سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار تینوں ملزمان پر نارکوٹکس کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور خاص سے۔ NA 211 اور PS 46 سے GDA کے مضبوط امیدوار مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ فنکشنل میر جان اللہ تالپر نے پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست GDA کے مرکزی آفس میں جمع کروا دی۔ میر جان اللہ نے مزید گفتگو میں کہا کہ GDA کے الائنس سے بھرپور الیکشن کیمپین کا آغاز جلد کر دیا جائے گا۔ ناروال چلتی ٹرین پر بھاگ کر چڑھنے کی کوشش، مسافر ٹرین تلے آ کر جاں بھاگ۔ 126 ڈاؤن لاسانی ایکسپریس سیالکوٹ سے ناروال اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی۔ 45 سالہ محمد زمان نے چلتی ٹرین پر چڑھنے کی کوشش کی، پاؤں پھسلنے سے ریلوے لائن اور ٹرین کے ڈبوں کے ساتھ گھسیٹنے سے جاں بھاگ ہو گیا۔ مرنے والے مسافر کا تعلق رانا گاؤں سے بتایا جا رہا ہے۔ پاک پتن سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ساہیوال ڈویژنل بیورو چیف BRN نیوز سید مختوم حسین نقوی۔ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی پاک پتن رانا محمد عمر اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی نوید سیلانی کے حکم پر میونسپل آفیسر پلاننگ شہباز احمد، بلڈنگ انسپیکٹر محمد احمد اور انفورسمنٹ انسپیکٹر طارق فرید کی ریگولیشن ونگ میونسپل کمیٹی پاک پتن اور پولیس کی معاونت سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف مشترکہ کارروائی، بغیر منظوری نقشہ کمرشل پراپرٹیز بلڈنگز کو موقع پر سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ چودھری محمد ارشد کی زیر صدارت سرکاری زمینوں کو واگزار کروانے کے بارے میں اجلاس ننکانہ صاحب سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے طارق محمود۔ ننکانہ صاحب میں محکمہ اوقاف کی زمینوں کو واگزار کروانے کے لیے گرینڈ آپریشن کا حتمی فیصلہ۔ محکمہ اوقاف گرداوری کے مسائل پر آج ہی محکمہ ریونیو کو مراسلہ جاری کرے، غیر قانونی تعمیرات میں ملوث اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کر دیا جائے، آپریشن کے دوران پولیس کی بھاری نفری تعینات کی جائے، محکمہ پولیس کو ہدایت۔ سانگڑ سٹی رپورٹر ابراہیم خلجی، پیرو مل اور CIA پولیس کی خفیہ اطلاع پر مشترکہ کارروائی، ناکہ لگا کر مشتبہ ٹرک کی تلاشی، جعلی سگریٹ کے 200 کارٹن برآمد، 2 ملزمان گرفتار۔ شاہپور چاکر پولیس نے گل محمد بروہی سے بغیر لائسنس رائفل برآمد کر لی، 4 منشیات فروش گرفتار، گٹکا اور شراب برآمد۔ تفصیلات کے مطابق SSP سانگڑ کیپٹن صدام حسین کی ہدایات پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مسلسل کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں SHO شاہپور چاکر راجہ نوید سرفراز نے ماتحت عملے کے ہمراہ ملزم گل محمد بروہی کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے ایک 7mm رائفل بما 5 گولیاں برآمد کر لی۔
SHO पीरोमिल मुनीर अहमद जतोई और ASI CIA मीर दोस्त शर ने मातहत अमले के हमरा खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए नाका लगाकर मशकूक मस्ता ट्रक को रोका और तलाशी के दौरान जाली सिगरेट्स के 200 कार्टन बरामद हुए। मुलजिमान नज़ार अली खान पठान और जुबैर खान पठान को गिरफ्तार करके मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जाली सिगरेट्स की नकलो हमल में इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रक भी तहवील में SHO टंडू आदम इम्तियाज अली खावर ने 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए, जिनके कब्जे से देसी शराब बरामद कर ली। इंचार्ज CIA सांगड़ अकबर अली चन्ना ने मातहत अमले के हमरा मनशियात फरोश हिम्मत अली गोरखानी को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 30 लीटर देसी शराब बरामद की। SHO झूल जहूर अहमद नौनारी ने मातहत अमले के हमरा मुल्जिम मोहम्मद यासीन मंगरियो पोटो को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से 1000 पड़ियां आदाब गुटखे की बरामद। तमाम गिरफ्तार मनशियात फरोशों के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट की दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। सरगोदा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अनोखा कारनामा। मेट्रोपॉलिटन का अमला बुखलाहट का शिकार। तफसीलात के मुताबिक 17 साल पहले इंतकाल कर जाने वाले शख्स के नाम के अदालती समन जारी करवा दिए गए। मेट्रोपॉलिटन अमले की नाअहली और गैर जिम्मेदारी का पर्दाफाश, आम शहरियों को जबरी चालान बनाकर देने और जमा करवाने पर जोर। मेट्रोपॉलिटन महकमा आम शहरियों को मुख्तलिफ मुकदमात पे फंसाने में मसरूफ अमल है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अपने महकमे की तनख्वाहें पूरी करने के लिए आवाम की जेब काटने लगा। शहरियों की मेट्रोपॉलिटन महकमे को रिकॉर्ड दुरुस्त करने और जिम्मेदाराना रवैया रखने की अपील। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन में कांस्टेबलान के प्रमोशन लिस्ट A और B1 के इम्तिहानात का इनेकाद। प्रमोशन लिस्ट A और B1 का इम्तिहान मेरिट पर किया गया। SSP हुमा नसीब किसी की हक तलफी नहीं की गई। अहल कांस्टेबलान को तरक्की दी गई है। एडिशनल IG पंजाब राव अब्दुल करीम और DIG पंजाब डॉक्टर अतर वहीद की हिदायत पर मुल्तान रीजन में प्रमोशन लिस्ट A और B1 के इम्तिहानात का इनेकाद किया गया। हुमा नसीब सुपरिटेंडेंट ऑफ पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन, चेयरमैन इम्तिहानी बोर्ड DSP राना जहीर बाबर जिला मुल्तान, DSP जुबैर बंगिश जिला मुजफ्फरगढ़ और DSP मोहम्मद ताहिर बट्टू जिला पाकपतन मेंबर बोर्ड मौजूद थे। इस मौके पर हुमा नसीब सुपरिटेंडेंट ऑफ पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन ने कहा कि बेहतरीन ड्रिल और पेशेवराना महारत के हामिल कांस्टेबलान का लिस्ट A में इंदराज करने के बाद B1 इम्तिहान का इनेकाद किया गया। SP पेट्रोलिंग ने कहा कि प्रमोशन लिस्ट A और B1 के इम्तिहान इंतहाई शफाफ मेरिट की बुनियाद पर हुआ। तहरीरी इम्तिहान पास करने वाले मुलाजमीन को इंटरव्यू और प्रेड टेस्ट के लिए बुलवाया गया और अहल और मयार पर पूरा उतरने वाले कांस्टेबलान को ही प्रमोशन दी गई। किसी की हक तलफी नहीं की गई। पेश उमरकोट से फदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट। समाजी तंजीम CPDI की जानिब से CPD और NAD इदारों के मुश्तरका ताउन से पाकिस्तान में बजट की शफाफियत के हवाले से जिला उमरकोट के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ एक रोज़ा डायलॉग प्रोग्राम जिला कौंसल उमरकोट के हॉल में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर वाइस चेयरमैन जिला कौंसल उमरकोट मियां खालिद वल्हारी, DO एजुकेशन प्राइमरी सैयद असलम शाह, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन उमरकोट के असिस्टेंट डायरेक्टर, जिला कौंसल के मेंबरान, RSU के नुमाइंदों, मेंबरान, टाउन कमेटियों के मेंबरान, मनहाड़, RSO, दीगर लोकल गवर्नमेंट के अफसरान, प्रेस क्लब उमरकोट के सहाफ़ियों, मुख्तलिफ समाजी तंजीमों और रहनुमाओं समाजी प्रोग्राम से खिताब करते हुए वाइस चेयरमैन जिला कौंसल उमरकोट मियां खालिद वल्हारी ने कहा कि पाकिस्तान में बजट की शफाफियत के अमल में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को सिविल इदारों में बजट की शफाफियत, इसके बेहतर इस्तेमाल के लिए काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तमाम इदारे बजट का सही इस्तेमाल करें, इसके बेहतर इस्तेमाल के अमल को बेहतर बनाया जाए ताकि आम लोगों को इससे आगाही हासिल हो। उन्होंने कहा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत हर आम आदमी किसी भी मालूमात तक रसाई हासिल कर सकता है। जबकि पाकिस्तान में बजट की शफाफियत की हालत 2023 के उन्वान से चौथी रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान में बजट की शफाफियत का अंदाजा लगाया गया बल्कि इसकी मौसूलियत का भी जायजा लगाया गया। कवानीन जो कि बजट की मालूमात का तखमीना लगाने में मदद करता है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि बजट को फास्ट ट्रैक करने की बजाय इसे वफाकी और सूबाई मालियाती कमेटियों को भेजा जाए। CPDI की रिपोर्ट में तमाम प्लानिंग कमीशन को भी तलब किया गया। तमाम वफाकी सूबाई सतहों पर आवाम के लिए फॉर्म PC1 और PCV दस्तयाब किए जाएं। बजट पर बहस के दौरान और मुतवाज़िन बजट पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस मौके पर तमाम स्टेक होल्डर्स ने अपने ख्यालात का इजहार किया और बजट की शफाफियत के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश की। इस मौके पर डॉक्टर गशनाम बहेजर, मनहाड़, आरेसर, मैडम नूरजहां,
गुलजार समूह, अलहजरियों सोमरू और दीगर ने भी शिरकत की। खिपरू से फरीद मकल की रिपोर्ट के मुताबिक खिपरू यौम शोहदाए आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के नन्हे बच्चों की याद में एक रोज़ा साइंस आर्ट कल्चर एग्जीबिशन मुनक़्क़िद की गई। इसमें इचड़ूथर के दूर दराज सेहरा के स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। हमने शहीद बच्चों की याद में मुनफरिद अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया। तफसील के मुताबिक खिपरू तालुका एजुकेशन ऑफिसर अरबाब अली समीजू, हेड क्लर्क हनीफ समीजू ने तालुका खिपरू के असातिज़ा कराम से मिलकर 16 दिसंबर यौम शोहदा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की याद में मुनफरिद अंदाज में खराज अक़ीदत पेश करने का फैसला किया। पदमगीर हॉल में एक रोज़ा शोहदा पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के नाम से साइंस आर्ट कल्चर एग्जीबिशन मुनक़्क़िद करके बच्चों को इनके टैलेंट उजागर करने का मौका फराहम किया गया। इस प्रोग्राम में तालुका खिपरू के 46 प्राइमरी स्कूलों के तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने टैलेंट के मुताबिक पढ़ी गई निसाब की किताबों में साइंस और आर्ट नमूने बनाकर स्टॉल्स लगाए। जबकि प्रोग्राम की शुरुआत कलाम पाक से की गई, कौमी तराना बजाया गया। स्कूल के बच्चों ने फर्जी तौर पर शहीद होने वाले तलबा को फौजी अंदाज में सलामी पेश की और फूलों की चादर चढ़ाई। तकरीब में शरीक मेहमानों को सिंध की सकाफत सिंधी अजरक का तोहफा दिया गया। इस मौके पर शहर की मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियत, डॉक्टर्स, नौजवानों, बिलखसूस खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस साइंसी मेले में शिरकत करने वाले अदीब दानिश्वर भटाई, एडवार्ड याफ्ता मुनसफ उस्ताद लगारी, सियासतदान शौकत हिंगोर, जो DEO एजुकेशन संघर, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन संघर, प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्बास शाह, मिनहाजुल कुरान के अब्दुल सत्तार चौहान और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तालुका खिपरू की तारीख में पहली मर्तबा सरकारी स्कूलों की जानिब से साइंस आर्ट मेला लगाया गया है। इसमें तलबा तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने टैलेंट को उजागर किया। सब ने इन आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के नन्हे शोहदा की याद में अज़्म किया, हमें पढ़ लिख कर अपने मुल्क का नाम रोशन करना है और दुश्मनों को बताना है कि हमारे इरादे कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत हुए हैं। ये साइंस और आर्ट मेला शाम तक जारी रहा। खबर शामिल करते मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से मुजफ्फरगढ़ रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा अमीर PP 271 फारूक हैदर अवान और कारी अब्दुल लतीफ़ साहब के आरिफ रटा और खालिद रटा की वालिदा की कुलखानी में शिरकत करते हुए रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा अमीर PP 271 फारूक हैदर अवान साहब और कारी अब्दुल लतीफ़ साहब के राना शफी उनकी वालिदा की कुलखानी में शिरकत करते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा MPA PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख न्यू मजीद मेडिकल हॉल शाह जमाल में मुलाकात करते हुए रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा अमीर PP 271 फारूक हैदर अवान साहब और कारी अब्दुल लतीफ़ साहब के मलिक अब्दुल मजीद कनेरा साहब से इनके स्टोर पर मुलाकात करते हुए रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख फयाज मोहाना के जनाजे में शिरकत करते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख चीनी के लट्ठे खरीद कर बच्चों में तकसीम करते हुए रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हाजी इमरान भुट्टा और इरफान भुट्टा की दावत वलीमा में शिरकत करते हुए रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख बस्ती नूरवाला मूजा मान का भट्टा में सालाना मिलाद शरीफ में शिरकत करते हुए रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख वकास भुट्टा की वालिदा की फातिहानी और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख पीर अल्ताफ शाह साहब से आड़ा चौक पर खुशगवार माहौल में मुलाकात करते हुए मियांवाली की तहसील पिपला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम नहीं किए। इंतजामिया किराए कम कराने में नाकाम हो चुकी है। मजीद जान लेते हैं हफीजुल्लाह खान न्यासी से। जी हफीजुल्लाह, इस सवाल से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मियांवाली तहसील पिपला में। अगर आज हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, तो जहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोर्टर की जानिब से किराए में कमी नहीं की गई, किराए वही बरकरार है। इस वक्त हमारे पास एक मुसाफिर मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि ये कहा कि ट्रांसपोर्टर की जानिब से किराए में कमी नहीं की जा रही है, क्या कहेंगे?
तुसा ठीक आते पे हो हाले ताईं किराए नहीं घटे बराए मेहरबानी इंतजामिया नाल अपील है कि कोई किराए के आसे पासे गौर किया वजे। अज तो 6 महीने पहले जो किराया 250 रुपए 200 रुपए हाफिज वाला 250 पिपला चलता पाया बिल्कुल वो किराया फिलहाल गिनते पैन। मेहरबानी करो तो कोई सानू रिलीफ लियो तो सारे किराए दे विच कमी करो। गरीब आदमी वो परेशान है। मैं हाले तो सफ़र करना तो औखत है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना यही है कि किरायों में कमी नहीं की गई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तो कम कर दी गई हैं। इंतजामिया को चाहिए कि ट्रांसपोर्ट हजरात को पाबंद करे कि वो किराए में कमी करे ताकि हमें रिलीफ मिल सके। जी खबर शामिल करते मियाँवाली से हफीजुल्लाह खान न्याजी की रिपोर्ट के मुताबिक मियाँवाली की तहसील पिपला के नवाही इलाके चश्मा में इंटर स्कूल्स अंडर 16 ताइक्वांडो चैंपियनशिप एसोसिएशन के ज़रिए तमाम मुनक़्क़द की गई चैंपियनशिप में 4 अजला के 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मियाँवाली की तहसील पिपला के नवाही इलाके चश्मा में इंटर स्कूल्स अंडर 16 ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें 20 किलो वेट से लेकर 55 किलोग्राम वेट के 4 अजला सरगोदा, मियाँवाली, खुशाब और भक्कर के लड़के लड़कियों की 300 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 10 टीमों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप के चीफ ऑर्गेनाइजर मलिक आरिफ थे। इन मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अपने खेल में महारत और फन के जौहर दिखाए। आखिर में खिलाड़ियों में मेडल्स इनामात तकसीम किए गए। मेहमान खसूसी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस्लामाबाद कचहरी में वकील के साथ अनोखा वाकया। वकील के कोर्ट में मौजूद मोबाइल अचानक फट गया। मोबाइल जलता धुआं उठा तो वकील ने कोर्ट उतार कर फेंक दिया। कोर्ट के जिस हिस्से में मोबाइल था वो मुकम्मल जल गया। मोबाइल भी जल गया। वकील हैरान, रात को मोबाइल मुकम्मल चार्ज किया था, पावर बैंक भी नहीं लगा हुआ था, मोबाइल जेब में डाला हुआ था, अचानक महसूस हुआ धुआं उठ रहा है। मुतासरा वकील। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ VRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक दौरान मोटर बाइक ड्राइविंग खुदा न खास्ता रोड एक्सीडेंट हो जाए तो हेलमेट आपके सर की चोटों से आपको महफूज रखता है। इन ख्यालात का इजहार DSP ट्रैफिक मेहर मोहम्मद अमीन काठिया ने सीनियर सहाफियों में शामिल ज़िले सदर JPUI और नायब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन कॉलम निगार सैयद मखदूम हुसैन नकवी, सैयद नसीम अस्करी नायब सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन और निजी चैनल के CEO मियां मदद अली से खसूसी मुलाकात में किया। उन्होंने कहा कि दौरान ड्राइव हेलमेट अगर ना पहना गया तो जुर्माना अदा करना होगा। एक सवाल के जवाब में DSP ट्रैफिक मेहर मोहम्मद अमीन ने मौजूद सहाफियों को बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे रोड हादसात का सबब बन सकते हैं, इसलिए हुकूमत पंजाब ने इनकी ड्राइविंग पर पाबंदी लगा दी है। ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से आवाम की सहूलत के लिए बेहतरीन अमल है। अब घर बैठे आवाम को बिना किसी मुश्किलात के लाइसेंस दस्तयाब हो जाएगा। टंडू आदम से पेश करते हैं अपने नुमाइंदे राना मुरसलीन की ये रिपोर्ट। अल हयात ग्रुप टंडू आदम की जानिब से अल हयात ग्रुप पाकिस्तान की टीम के एहसास में एक पुरवकार तकरीब वाइट गोल्ड बैंक्वेट में मुनक्किद की, जिसमें कंट्री हेड सुमैर जदून, चीफ अफॉलन अजहर हुसैन, डायरेक्टर एडवाइजर मसूद गुल, असिस्टेंट डायरेक्टर जमील सफ्तर, रीजनल हेड मलिक तस्वुर हुसैन ने शिरकत की। आने वाले मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक पेश की गई। अल हयात ग्रुप के फ्यूचर प्लान के बारे में ब्रीफ किया। पाकिस्तान की इकानमी में अपने किरदार अदा करने और पाकिस्तान की तरक्की के लिए गोशा रहने पर जोर दिया, जबकि अल हयात पर एतमाद का इजहार किया गया। सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में मोहम्मद शाकिर रमजान, इमरान खान, जबकि शाकिरुल्लाह, डॉक्टर आमिर मुगल, खालिद बजोरू, जलालुद्दीन अंसारी, मोहम्मद रफीक अंसारी, कदीर मुगल, मोहम्मद रमजान मुगल, जहांज़ेब इमरानी, सोशल मीडिया इंचार्ज हाफिज हबीबुल्लाह अब्बासी और राना शहबाज के अलावा टंडू आदम के अवाम ने भरपूर शिरकत की। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे यूनिस शहबाजी से। चीचावतनी म्यूनसिपल कमेटी के शहर को साफ सुथरा रखने के दावे धरे के धरे रह गए। शहरी एरिया कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। अफसरान खामोश तमाशाई बन गए। मसरूफ तरीन रोड सीवरेज नाले में तब्दील। मस्जिद के करीब कूड़े के ढेर लग गए। म्यूनसिपल इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत। अलफता रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बावजूद इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। मस्जिद में आने वाले नमाजी, राहगीर और इलाका मकीन सीवरेज के गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं, जबकि कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं। बदबू ताफुन फैलने लगा। मकीनों को सांस लेने में मुश्किलात, दमे की बीमारी फैलने का खदशा। चीचावतनी शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल, DC साहिवाल से अरसा दराज से अवामी मसाइल पर गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा